କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା କି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫସଲରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫସଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ଫସଲରେ ସମସ୍ତେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବ କୀଟପତଙ୍ଗ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ବୋତଲ ବା ଡବା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେତିକି ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଡବା ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉପଦେଶ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ମାନେ କେବେ ଏଇ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ମାନେ କେତେ ଦିନରେ ଏଇ ଔଷଧଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏଇସବୁ ଉପଦେଶ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେ ଡବା ଉପରେ, ସେଇ ସବୁ ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଦୁଇରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତିକି ପରିମାଣର ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କିଣିଲେ ଭଲ। ଔଷଧ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲା, ଛୁଆ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କିଣିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଧର ଆମେ ଭାବିବା କି କୀଟନାଶକ ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହିଁ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡବାଟେ ବଡ଼ ବୋଟଲଟେ କିଣିକି ନେଇ ଆସିବା। ସେମିତି ଜମା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ ଗୋଟେ ଫସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଫସଲଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ତା'ର ଅମଳ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ଔଷଧର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ବି ରଖିଦେବା, ସେ ଔଷଧର ମାନେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିପାରେ, ମାନେ ସେଇ ତାରିଖ ପଳେଇ ଆସିପାରେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ସେ ଔଷଧଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କୀଟନାଶକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷ ନା। ତ ଯେଉଁ ବିଷଟା ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷ ଆମେ ରଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ପରିମାଣର ବୋଟଲ କିମ୍ବା ଡବା ଆମେ କିଣିବା। ଥାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛି ଆମକୁ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପ୍ରେର ଟାଙ୍କିରେ ନ ଢାଳି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଔଷଧ ଢାଳି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଥାଏ। ଆମକୁ ଯେତିକି ବି କୀଟନାଶକ ଆଉ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଇଛି କି ଏତିକି ପରିମାଣ ଆଉ 1 ଲିଟରରେ ପାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କହୁଛି କି ଯେତିକି ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟାଙ୍କିରେ ମିଶାଇବାନି। ଟାଙ୍କି ପାଣିରେ ନ ମିଶାଇକି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ନେବା, ତାପରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି, ଯେତିକି ଆମକୁ ଘୋଳ କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ମିଶାଇକି ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଟାଙ୍କିରେ ମିଶାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଔଷଧ ବୋତଲକୁ ଖାଲି ହାତରେ ନ ଧରି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଦେହରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଷ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ମାରିପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଶରୀରକୁ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ରଖି ଆଖିରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆମର ଆଲର୍ଜି ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ ଓ କିଛି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କି ନା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କି ଆମେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଗୋଡ଼ରେ ବଡ଼ ଜୋତା ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ,
मुंडरे टोपी पिंधिबा उचित, तापरे आमको गोटे मास्क पिंधिबा उचित नाक और मुह को घोड़ेबा पाई। पवनर विपरीत दिगरु औषध सिंचन करने अनुचित। जदि आमे पवन गोटे दिगरे बहुची, आमे जदि तार माने विपरीत दिगरे छिड़ा होइकी सिंचन करवा, तो ये सब सिंचन गुड़ा आगे पड़ो कि ना आम मुहरे आसिक आम देहरे आसिक बाजिब। तो सेहीपरि आमे विपरीत पवन विपरीत दिगरे छिड़ा होइकी सिंचन करवा उचित नुह। अधिक खरा समय रे औषध सिंचन करवा अनुचित, कारण यही सब जो कीटनाशक औषध एक प्रकार रासायनिक पदार्थ, माने खरा समय रे टाण खरा समय रे कौन हुए, तापमात्रा जितेबाला अधिक थाए, से तापमात्रा अधिक समय रे किछि प्रकार रिएक्शन होई पारे। जदि जो कीटनाशक पकेला समय रे सेटा स्प्रे हेकी गछरे पड़िकी किछि प्रकार रिएक्शन होई पारे, किंबा सेटा स्प्रे कला समय रे सेटा गछरे न पड़िकी बाष्प होइकी परिवेश को मध्य जाई पारे। आउ जो उद्देश्य रे आमे कीटनाशक व्यवहार करुथबा सेटा सेमिति न होइकी परिवेश प्रति हानिकारक होई पारे, आउ आम गछ को भी आउ सेमति किछि भल ये करिवो नाही, कारण से तो बाष्प होइकी उड़ी गला ना। आ कीटनाशक गछरे पड़िला केतेबेले जे कीट को जो पोक मानन को मारिबो, ठीक है, बुझी पारलो। तापरे फसल अमल पाखे आसुवा समय रे औषध प्रयोग करने उचित नुह। अमल जो पाखे आसुए कीटनाशक पकड़ा उचित नुह, कहीं किसी प्रकार अवशेष से रही जाए और सेटा आम स्वास्थ्य प्रति हानिकारक हो पारे। औषध प्रयोग करिबार 2-4 सप्ताह पर अमल करने उचित। जिते औषध पकईवा मिनिमम आम 2-4 सप्ताह माने मासे अपेक्षा करिकी तापरे अमल उत्पाद को आम मार्केट को छाड़ी परिबा किंबा ताकू खाई परिबा, नहले सेटा कीटनाशक अवशेष ता देहरे थिबो। खाली बोतल बा डब्बा गुड़ी को माटी रे पोती देबा, जेपरिकी आउ कहा संस्पर्श रे न आसे। किछि बोतल प्लास्टिक बोतल ले आसु थाए, तो प्लास्टिक बोतल गुड़िक आम माटी रे पोतीबानी, कहीं ना सेटा कौन परिवेश दूषित करिवो। प्लास्टिक का माटी रे पोतिले परिवेश दूषित करिवो कि नहीं। तो आमे को पानी थिबा जगह पाखरे पोतीबानी, को दूर जगह को नहीं कि जदि टीण डबा थिबो टीण डबा को माटी रे पोतीबा। आउ जदि प्लास्टिक बोतल होइथिबो ताहाले आमे ताकू ठीक जगह रे जोठी डस्टबिन थुआ होइछि डस्टबिन रे से डबा को पकाइबा। अरे त्रिलोकी चाचा, कहाँ जा रहे हो? जंग पर जा रहा हूँ, फसल के दुश्मनों को सबक सिखाने। फसल के दुश्मन? यानी हमारी फसल के कीट, खरपतवार, बीमारी, ये हमारी फसल के दुश्मन। हाँ चाचा, वो तो है। तो तुम बिना हथियार और तैयारी के ऐसे ही लड़ लोगे? हथियार है ना इस डब्बे में, बस इसे हाथों से खेतों में डालना है और दुश्मन भाग जाएंगे। बड़े भोले हो त्रिलोकी चाचा। कभी जंग पर जाने वाले सैनिक को देखा है? हाँ, देखा है। तो क्या वो यूं ही उठकर चल देते हैं दुश्मनों से लड़ने बिना तैयारी के? बाकायदा ड्रेस पहन के बुलेट प्रूफ जैकेट में होते हैं, खुद की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं। और आपको देखो, ना हाथों में दस्ताने हैं, ना मुंह पर कपड़ा, बस चल दिए डब्बा उठा के। कीटनाशक डालने में कैसी सुरक्षा? बस डालने के बाद हाथ धो लो। नहीं चाचा, यही तो हम गलती करते हैं। कीटनाशक बहुत जहरीले होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले बहुत सुरक्षा और सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे घोल बनाते समय पूरा शरीर ढका होना चाहिए, हाथ में दस्ताने हों और चेहरे पर मास्क, कैप, एप्रन और फुल पैंट पहना हो। हमेशा आंख, नाक, कान और हाथों पर कीटनाशक धुलने से बचना चाहिए। बस इतनी सी बात, चलो अभी किए देते हैं। चाचा, बस इतना ही नहीं, कीटनाशक खरीदते समय ध्यान रहे कि केवल अधिकृत डीलर से ही कीटनाशक खरीदें। आपके खेत के क्षेत्र के हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। खरीदते वक्त मानक लेबल, बैच नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और निर्माण और एक्सपायरी की तारीख और पैकिंग सील जरूर देखें। अरे, इन सब बातों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, बस सील लगा हुआ डब्बा देख लेते हैं। और भी बहुत कुछ है ध्यान रखने को। यही कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे, ये तो हम जानते हैं। चाचा, ये तो ठीक है, कीटनाशक को संरक्षित करते समय भी बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे
कीटनाशक घर से दूर अलग जगह पर रखा हो। कीटनाशक को असली डब्बे में ही रखें और सूर्य की रोशनी और बारिश से दूर सुरक्षित रखें। अरे किशन, तू तो बहुत होशियार है। अब जब इतना सब ध्यान रखना है तो उपयोग करने का तरीका भी बता दो। चाचा, ये हुई ना बात। अब सुनो, कीटनाशक के उपयोग के समय ध्यान रहे कि उसे ले जाते समय सबसे अलग और अच्छी तरह संभाल कर रखें। कीटनाशक का घोल हमेशा साफ पानी में ही बनाएं और सबसे खास बात, डब्बे पर लिखे सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ें। आवश्यकता के अनुसार और लिखे हुए निर्देश के अनुसार ही घोल बनाएं। इस बात का तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। बहुत बढ़िया चाचा। और हाँ, ध्यान रहे घोल को टैंक में भरते समय ढुलने ना दें। अब छिड़काव कैसे करना है वो भी बता ही दो। हाँ चाचा, घोल के छिड़काव के लिए सही मशीन जैसे कीटनाशक और खरपतवार नाशक के लिए अलग अलग स्प्रेयर और साइज के नोजल का चुनाव करें। घोल के छिड़काव के समय ध्यान रहे कि बताए गए डोज का दिन के समय कम तापमान में हवा के रुख की ओर ही छिड़काव करें। कीटनाशक के बारे में इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यही नहीं चाचा, स्प्रे के बाद स्प्रेयर बाल्टी को अच्छी तरह साबुन से साफ करें। स्प्रे के तुरंत बाद खेत में जानवर या किसी इंसान को आने ना दें। छिड़काव के बाद तक कई विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जान जाने का भी खतरा है। जैसे उपयोग के बाद बचा हुआ घोल और खाली डब्बा पत्थर या किसी धातु से मोड़कर खेत और जल स्रोत से दूर मिट्टी में गाड़ दें। अपने हाथों, मुंह को साफ पानी से और साबुन से अच्छी तरह धो लें। अगर शरीर पर कोई जहर का प्रभाव या लक्षण दिखाई दे तो तुरंत प्राथमिक उपचार करें और मरीज को डॉक्टर को दिखाएं और कीटनाशक का डब्बा भी दिखाएं, जिससे उन्हें उपचार में मदद मिल सके। क्या बात कही किशन, हमें तो ये सब मालूम ही नहीं था। अब मैं अपने खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक का उपयोग करने से पहले सावधानी रखूंगा।